Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE Class 9th Information Technology subject code 402. In this video, we will start the unit 2 of part B, that is spreadsheet applications. This unit is divided into 5 sections or 5 sessions. In this video, we will cover the first session, and these topics we will cover: introduction about spreadsheet, what are the basic terms related with spreadsheet, how to create, open and save a worksheet, and these various operations that can be applied on the spreadsheet. So let's start. First of all, what is a spreadsheet? A spreadsheet is a software tool which is used to perform the complex calculation very easily. देखो, अगर आपके पास कोई भी टाइपिंग का वर्क है कि आई वांट टू राइट अ मैगजीन और आई वांट टू प्रिंट अ बुक, फॉर दैट तो आई विल गो विथ ऑफिस राइटर व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस. बट अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, सपोज जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हो तो आपकी मार्कशीट्स प्रिपेयर करती हैं टीचर्स, ठीक है. टीचर्स यूज्ड टू प्रिपेयर योर रिपोर्ट कार्ड इन अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, जहां पर मेरे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस we can perform in within seconds. So it is a software tool that lets you enter, calculate, manipulate and analyze the set of numbers. Means आप इसमें अपनी न्यूमेरिक वैल्यूज को एंटर कर सकते हो, कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं. एनालाइज मीन्स कि आपका डेटा कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स वी कैन डू दिस. These are the basic terms related to spreadsheet. Before discussing these terms, let me show you the document window of spreadsheet. This will look like this. So I am opening my OpenOffice Calc. First of all, click on this Start button, then Open Office, then click on this OpenOffice Calc. After clicking on this, a document window will appear like this. ठीक है. इफ यू विल सी द स्टेटस बार, तो यहाँ पर प्लस और माइनस के ऑप्शंस हैं, ठीक है. माइनस से आपका जूम आउट हो जाएगा और साइज इंक्रीज करने के लिए यू हैव टू प्रेस द प्लस सिंबल. नाउ लेट बैक टू दिस. दीज आर द वेरियस टर्म्स. फर्स्ट वन इज वर्कशीट. वर्कशीट देखो क्या होता है. जब मैंने अपना ये ऑफिस राइटर, ऑफिस कैल्सी ओपन किया है, तो by default I am having 3 sheets in this. Check on the bottom, sheet 1, sheet 2 and then sheet 3. One sheet is called your worksheet. तो जहां पर भी worksheet लिखा हो, that means we are talking about that particular sheet. A collection of sheet, ये आपकी complete file है. This is called your workbook. Means a workbook consists of multiple sheets. Next term is row number and column letter. Just see this at the very leftmost side. 1, 2, 3, 4, 5. These are your row numbers, and A, B, C, D. These are your column letters. Next term is cell pointer or cell. देखो, cell is the intersection of row and column. कि जहां पर मेरी एक रो और एक कॉलम, दिस इज माई रो एंड दिस इज माई कॉलम, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका क्या होगा, एक सेल. और जो ये सेल मेरा सिलेक्टेड है, यहाँ एक बाउंड्री शो हो रही है, तो दैट इज माई एक्टिव सेल, और यू कैन से कि करंट सेल जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है. नेक्स्ट है रेंज ऑफ सेल. रेंज ऑफ सेल मीन्स कलेक्शन ऑफ कॉन्टिग्यूअस सेल. ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ 2 सेल यहाँ से सिलेक्ट करे फिर 2 यहाँ से करे, नहीं. रेंज सेल मीन्स कलेक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूअस सेल इन अ वर्कशीट. अब हर एक सेल का मेरे पास क्या होता है, एक यूनिक नंबर. जैसे आप लोगों का एक यूनिक नेम होता है, ऐसे ही हमारे पास जितने भी एक्सेल में सेल हैं उसका हर एक का एक क्या होता है, यूनिक नेम. और वो हर एक सेल का हम नेम कैसे देते हैं, जो भी मैं सेल को सेलेक्ट करूंगी, सपोज मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, आपने इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम चेक करना है
कॉलम लेटर, देन इसके करस्पॉन्डिंग रो लेटर. नाउ सपोज आई हैव सेलेक्टेड दिस सेल, तो इस सेल के करस्पॉन्डिंग मेरा कॉलम लेटर क्या है, बी, और रो नंबर क्या है, 2. तो द नेम ऑफ दिस सेल इज B2. If I am selecting this cell, तो corresponding column letter is C and row number is 5. So the name of this cell is C5. Let's check one more example. I am selecting this cell now. This. For this, the corresponding column is E and corresponding row number is 21. So the name of this cell is E21. और आप एक चीज देखो, जो आपका यहाँ पर नेम बॉक्स दे रखा है, दिस, जो भी आप सेल सेलेक्ट करोगे वो नेम बॉक्स में उस सेल का क्या आ जाएगा, नेम. सपोज आई एम सेलेक्टिंग B17, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, B17. नाउ आई एम सेलेक्टिंग B2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, B2. इसका एक एडवांटेज और भी है, आप यहाँ पर जो भी सेल का नेम लिखोगे, सपोज आई एम राइटिंग D5, और आफ्टर प्रेसिंग द एंटर की आपका जो पॉइंटर है वो कहां पर आ जाएगा, D5 पर. These basic terms we have discussed now. वर्कशीट क्या है, रोल नंबर, कॉलम लेटर, सेल्स, रेंज ऑफ सेल एंड सेल पॉइंटर. नाउ दिस इज माय विंडो जो आपकी ओपन होएगी ओपन ऑफिस कैलसी की. नाउ सी हियर एट द वेरी टॉप, दिस इज कॉल्ड टाइटल बार. ठीक है, टाइटल बार के राइट मोस्ट साइड पर 3 बटन है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड देन क्लोज. बिलो द टाइटल बार वी आर हैविंग मेन्यू बार. मेन्यू बार में क्या है, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, ये आपके सारे क्या हैं, मेन्यूज. इसमें आपको जो भी एक्सेल में कमांड्स परफॉर्म करनी है स्प्रेडशीट में, यू कैन परफॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शंस. Below the menu bar, this is my standard toolbar. Standard toolbar में आपकी जनरली वो सारी कमांड्स होंगी which you will use frequently, means जो आप बार बार यूज कर सकते हो. At the right side of standard toolbar we are having find toolbar, कि अगर आपको अपनी स्प्रेडशीट में कोई टेक्स्ट को क्या करना हो, फाइंड करना हो. Below the standard toolbar we are having the formatting toolbar. Formatting toolbar contains those commands which are used to apply the formatting options on a cell. कि आपने उसका स्टाइल चेंज करना है, साइज इंक्रीज करना है, कलर चेंज करना है, उसकी अलाइनमेंट सेट करनी है. These options you will find in the formatting toolbar. Below the formatting toolbar, this option. This is called name box and this is called formula bar. This one. ठीक है, नेम बॉक्स में तो क्या आएगा, जो भी आपके सेल का नेम होगा वो आ जाएगा. अब जैसे इसमें सिलेक्टेड सेल कौन से है, A1, तो नेम बॉक्स में क्या आ जाएगा, A1. और फॉर्मूला बार में क्या आएगा, जो भी आप सेल के अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखोगे दैट यू कैन सी हियर. उसके बाद दीज आर माई रो हेडर्स, दीज आर माई कॉलम हेडर्स. एट द वेरी बॉटम वी आर हैविंग स्टेटस बार. स्टेटस बार में यहाँ प्लस और माइनस का सिंबल है टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ अ शीट, मींस जूम आउट एंड जूम इन. एंड अबव द स्टेटस बार वी आर हैविंग शीट टैब्स. बाय डिफॉल्ट इन ओपन ऑफिस कैलसी वी आर हैविंग 3 शीट्स, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3. जैसे आपके MS वर्ड में पेजेस होते हैं, ऐसे ही अगर मुझे एक्सेल में वर्क करना हो मींस स्प्रेडशीट में, तो we are having sheets for that. ठीक है, अब हम these contents we will cover. Introductory part we have done, spreadsheet basic terms we have discussed. अब हम देखेंगे navigating and selecting the worksheet. Navigating means अगर मुझे एक सेल से दूसरे सेल पर मूव करना हो. If you are using your mouse, तो और trackball, just click the left mouse button. You will go to that particular location. ठीक है, navigating means एक सेल से दूसरे सेल पर मूव करना. You can do this with the help of keyboard shortcut keys also. देखो, अगर मुझे एक सेल से दूसरे सेल पर जाना है तो for that I can press either tab key or
राइट एरो की, और अगर मुझे बॉटम पे जाना है डाउनवर्ड्स तो आई हैव टू प्रेस द डाउन एरो की। ठीक है, अब देखो अगर मैं एरो की प्रेस करते चली जाऊं ये तो कॉलम नेम्स आते ही चले जा रहे हैं। इफ आई वांट टू सी कि व्हाट इज द नेम ऑफ माय लास्ट कॉलम, आप देखोगे तो WXYZ के बाद ये कैसे स्टार्ट हो जाएगा, AA, AB, AC, AD अप टू AZ। AZ के बाद ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा BA, BB, BC इस तरीके से। तो अगर मुझे लास्ट कॉलम पर जाना है तो आई हैव टू प्रेस द की कंट्रोल एंड राइट एरो की। तो लास्ट कॉलम जो है मेरा दैट इज AMJ। ठीक है, अगर मुझे वापस से बिल्कुल फर्स्ट कॉलम पर आना है तो आई हैव टू प्रेस द कंट्रोल एंड लेफ्ट एरो की। अगर मुझे लास्ट रो देखनी है कि टोटल इसमें रोज कितनी है तो आई हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस डाउन एरो की। ठीक है, अब इसके नीचे नहीं आएगा 1048576। दिस इज द नंबर कि मेरी जो स्प्रेडशीट है उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है। If I want to go back to the first row, तो then I have to press the control plus up arrow key. ठीक है, basically to go to the end of that column and end of the row, you have to press the 4 arrow keys with combination of your control key. ठीक है, like this. Next, selecting range. अगर आपने कोई रेंज सेलेक्ट करनी है, रेंज क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस सेल का कलेक्शन। ठीक है, अब देखो सपोज इस सेल का नेम क्या है A2, जस्ट प्रेस योर लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट, तो ये आपकी क्या सेलेक्ट हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड माय रेंज ऑफ सेल। अगर मुझे ये सेलेक्ट करना है, जस्ट प्लेस योर माउस पॉइंटर हियर एंड देन ड्रैग इट। यू हैव टू ड्रैग इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन जहां पर आपको रेंज ऑफ सेल को क्या करना हो, सेलेक्ट। अगर आपको कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट करना है तो जो भी कॉलम सेलेक्ट करना हो कंप्लीट, जस्ट क्लिक ऑन दैट कॉलम लेटर। ठीक है, आई हैव जस्ट क्लिक ऑन दिस B, तो ये आपका पूरा कॉलम क्या हो गया, सेलेक्ट। इसी तरीके से अगर आपको कंप्लीट रो सेलेक्ट करनी हो तो जस्ट क्लिक ऑन दिस रो नंबर। इफ आई एम राइटिंग सेलेक्टिंग ऑन 5 तो आपकी जो कंप्लीट रो है वो क्या हो जाएगी, सेलेक्ट। उसके बाद है इंसर्ट, डिलीट सेल, रो एंड कॉलम, कि इफ आई वांट टू इंसर्ट द रो, डिलीट द रो, तो हाउ वी कैन डू दिस। नाउ टू एक्सप्लेन द फर्दर concept, I have created this table in OpenOffice Calc. I have just written the roll number, name and marks. 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स आई हैव एंटर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इफ आई वॉन्ट टू इंसर्ट और डिलीट द सेल, रो एंड कॉलम। ठीक है, अब देखो आपको पता है सेल क्या है, रो क्या है एंड व्हाट इज कॉलम। वन रेक्टेंगुलर बॉक्स इज कॉल्ड सेल, जहाँ पर ये नंबर्स हैं 1 2 3 4, दीज आर माई रो नंबर्स एंड ABC आर माई कॉलम लेटर्स। तो इफ आई वॉन्ट टू इंसर्ट अ सेल, ठीक है, इन आवर वर्कशीट, तो what we have to do, first of all select the place where you want to insert the cell. I am just zooming in so that it is clear to you. Suppose I want to insert my new cell here. ठीक है, अब यहाँ पर स्पेस तो नहीं है, तो to insert a cell, first of all click on this insert menu, then click on the cells option. After clicking on the cells option, this dialog box will appear. 4 options are here, shift cells down, shift cells right, entire row and entire column. Entire row और column से तो आपकी complete row और column insert हो जाएगा। बट अगर मैं बात करूँ इंसर्ट सेल की, अब मैंने ये 54 वाला सेल जो है सेलेक्ट किया। अब इफ आई वांट टू इंसर्ट अ न्यू सेल हेयर, तो देर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, मुझे यहाँ पर स्पेस बनाना पड़ेगा न्यू सेल को इंसर्ट करने के लिए। सो फॉर दैट वी हैव टू आइदर शिफ्ट दिस सेल टू द राइट और टू द डाउन। इफ आई विल सेलेक्ट दिस ऑप्शन शिफ्ट सेल्स डाउन एंड आई विल क्लिक ऑन ओके बटन,
तो जो मेरे ये सारे सेल्स थे वो एक एक सेल क्या शिफ्ट हो गए डाउन, और यहाँ पर मेरी एक वैल्यू क्या हो गई इंसर्ट. लेट्स डू द अदर मेथड. आई एम प्रेसिंग अनडू, दैट इज कंट्रोल प्लस Z. अब ये मेरे वापस से वहीं पर आ गई. इंसर्ट एंड देन सेल्स, एंड दिस टाइम आई एम क्लिकिंग ऑन शिफ्ट सेल्स राइट एंड देन क्लिक ऑन द ओके ऑप्शन. तो आपका जो सेल था वो कहाँ पर शिफ्ट हो गया, राइट पर. तो आप यहाँ पर अब जो न्यू सेल है वो इट गेट्स इंसर्टेड. इफ़ यू विल सेलेक्ट दिस प्लेस मीन्स सेल नेम B4 एंड देन क्लिक ऑन इंसर्ट एंड देन सेल ऑप्शन, और फिर सेलेक्ट करो शिफ्ट सेल राइट. तो ये आपके दोनों ही किस में शिफ्ट हो जाएंगे, राइट में, क्योंकि मुझे जो यहाँ पर एक न्यू सेल क्या करना है, इंसर्ट. इसी तरीके से आप रो या कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हो. फॉर दैट यू हैव टू सेलेक्ट द रो जिसके ऊपर एक रो इंसर्ट होएगी. अब ध्यान से देखो मैंने कौन से, ये 5 है. अब अगर मुझे रोल नंबर 3 और 4 के बीच में एक रो इंसर्ट करनी है, ठीक है, तो जो आप सेलेक्ट करोगे उससे ऊपर एक रो इंसर्ट होएगी. फॉर दैट क्लिक ऑन दिस इंसर्ट ऑप्शन, आइदर क्लिक ऑन दिस रोज ऑप्शन. तो 4 से ऊपर आपकी क्या हो गई, एक रो इंसर्ट. सेकेंड मेथड क्या है बेटा, क्लिक ऑन दिस इंसर्ट ऑप्शन, सेल्स, एंड फ्रॉम हेयर सेलेक्ट एंटायर रो. इससे भी आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी. एंड थर्ड मेथड इज, अब यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, राइट क्लिक हेयर. कैसे राइट क्लिक करोगे, जिसके ऊपर करना हो वो रो नंबर सेलेक्ट करके क्लिक ऑन द रो नंबर, राइट क्लिक एंड देन इंसर्ट रो. इस तरीके से आपकी जो है एक न्यू रो इंसर्ट हो जाएगी. अब तक जितने मेथड्स किए उसमें हमारी एक टाइम पर एक ही रो इंसर्ट हुई है, ठीक है, बट वी कैन ऑल्सो इंसर्ट मल्टीपल रोज एट द सेम टाइम. फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, सेलेक्ट द नंबर ऑफ रोज. सपोज मैंने यहाँ पर कितनी सेलेक्ट करी, 1 2 3 4 रोज मैंने सेलेक्ट कर दी. उसके बाद मैंने यहाँ 9 पर राइट क्लिक करा and then I am clicking insert row. Just a second. Suppose I am selecting these 3 rows and then clicking on insert rows. तो उसके बाद जितनी रोज मैंने सेलेक्ट करी थी उतनी रोज आपकी क्या हो जाएंगी, इंसर्ट. ठीक है, लेट्स डू दिस अगेन. सपोज आई एम सेलेक्टिंग दीज 3 रोज, राइट क्लिक एंड देन इंसर्ट रोज. तो आपके यहाँ पर कितनी रोज इंसर्ट हो गई, 3. ऐसे ही हम कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं. जो सा कॉलम सेलेक्ट करोगे उसके लेफ़्ट साइड पर इंसर्ट होगा. ठीक है, सपोज वही सेम मेथड है, आइदर क्लिक ऑन द इंसर्ट मेन्यू एंड देन क्लिक ऑन द कॉलम्स ऑप्शन. तो अब मैंने नेम सेलेक्ट किया था, तो नेम से पहले आपका एक कॉलम क्या हो जाएगा, इंसर्ट. इफ़ यू वॉन्ट टू इंसर्ट मल्टीपल कॉलम्स, तो you have to select the number of columns which you want to insert. अब मैंने 3 कॉलम्स को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, इंसर्ट कॉलम्स. तो देखो उससे पहले मेरे 3 कॉलम्स क्या हो गए, इंसर्ट. ठीक है, इसी तरीके से आप इनको क्या कर सकते हो, डिलीट. सेलेक्ट दिस 3 देन क्लिक ऑन द डिलीट कॉलम्स. इफ़ यू वांट टू डिलीट एनी रो देन सेलेक्ट द रो नंबर, राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन द डिलीट रो. तो 5th रो आपकी कंप्लीट क्या हो गई, अब डिलीट. यू कैन परफॉर्म वेरियस ऑप्शंस फ्रॉम हेयर ऑल्सो, प्लस बाय सेलेक्ट राइट क्लिकिंग द रो एंड कॉलम नंबर ऑल्सो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, फ्रीजिंग रोज एंड कॉलम्स. फ्रीज का मतलब क्या होता है बेटा, कोई चीज़ को फिक्स कर देना. अब सपोज़ करो मेरे पास काफ़ी सारे यहाँ पर रोल नंबर या नेम्स हैं. अब मुझे नहीं पता ना इस कॉलम का नेम क्या है, ऊपर वाले कॉलम की जो हेडिंग है उसका नेम क्या है, या मार्क्स क्या हैं. अगर मैं इस मार्क्स की जगह लिख दूँ इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, ठीक है, और यहाँ पर मैंने रेंडमली कोई भी मार्क्स लिख दिए. सिमिलर फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो. ठीक है, रेंडमली आई हैव रिटन द मार्क्स. अब मैं अगर इस सेल को सिलेक्ट कर रही हूँ तो अब मुझे नहीं पता लग रहा ना कि ये किस सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, क्योंकि वो तो मेरे किससे पता लग रही है, कॉलम की हेडिंग से.
So for that we need the purpose of freezing rows and columns. अब फ्रीज देखो कैसे करोगे. अगर मुझे फर्स्ट रो फ्रीज करनी है, जनरली जब हम वर्क करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन में, तो वी यूज टू फ्रीज द टॉप रो एंड लेफ्ट मोस्ट कॉलम. अब अगर मुझे टॉप रो फ्रीज करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, उसके नीचे वाली रो सेलेक्ट करोगे एंड देन क्लिक ऑन द विंडो मेन्यू. आफ्टर क्लिकिंग ऑन द विंडो मेन्यू, क्लिक ऑन द फ्रीज ऑप्शन. जैसे आप फ्रीज पर क्लिक करोगे आपकी एक लाइन आ गई. तो अब जब मैं डाउन एरो की प्रेस करूँगी तो देखो मेरे बाकी के वो मूव हो रहे हैं, बट जो मेरी फर्स्ट टॉप मोस्ट रो है वो आपकी क्या रहेगी, फिक्स. इफ़ यू वांट टू अनफ्रीज, तो सेम प्रोसेस, क्लिक ऑन द विंडो मेन्यू एंड देन क्लिक ऑन दिस फ्रीज ऑप्शन. इट विल गेट अनफ्रीज. अगर आपने कॉलम को फ्रीज करना हो कि अगर मैं इधर मूव करूं, अब मुझे नहीं पता लग रहा ना ये 67 मार्क्स जो है मैथ्स में किस स्टूडेंट के हैं, कौन से रोल नंबर के हैं. सो फॉर दैट आई हैव टू फिक्स द रोल नंबर कॉलम. सो क्लिक ऑन दिस विंडो एंड देन फ्रीज. अब देखो यहाँ पर आपका एक लाइन आ गई. तो आप जब इसको मूव करोगे आपका जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है वो क्या रहेगा, फिक्स. दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड फ्रीजिंग रोज एंड कॉलम्स. And to unfreeze this we have to click on the Windows menu and then click on the freeze option. तो वो आपका क्या हो जाएगा, unfreeze. Next is बेटा splitting the windows and screen. Split का मतलब क्या होता है कि आपकी जो ये complete window given है इसको आपने split करना है either horizontally और vertically in two parts. कि मुझे ऊपर और दोनों वैल्यूज़ पर वर्क करना है, कि मुझे इस ध्रुव वाले रोल नंबर को भी देखना है और जो नीचे वैल्यूज़ हैं उस पर भी साथ में वर्क करना है. तो इसके टू मेथड्स हैं. एक तो देखो जहाँ बिल्कुल बॉटम राइट साइड पर एक ये ब्लैक सी लाइन है, ठीक है, व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस योर स्क्रीन विल गेट स्प्लिट. और सेकेंड मेथड, क्लिक ऑन द विंडो मेन्यू एंड देन क्लिक ऑन द स्प्लिट ऑप्शन. तो आपकी जो स्क्रीन है ये क्या हो गई, स्प्लिट. ठीक है, अभी आपकी टू कॉलम्स में क्या हो गई, डिवाइड, इस तरफ भी और इस तरफ भी. लेट मी शो यू दिस अगेन. अब इंस्टेड ऑफ रोल नंबर ना हम यहाँ वाला सेल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, हिंदी वाला. अब मैंने क्या करा, विंडो एंड देन स्प्लिट. ठीक है, अब देखो ये मेरा जो ये है मेरी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई. इसको थोड़ा आप ऐसे नीचे भी कर सकते हो. अब मैं इसमें चारों तरफ वर्क कर सकती हूँ. जो फर्स्ट वाला है उसमें भी ये सारी वैल्यूज़ आएंगी, सेकंड वाली जो विंडो स्प्लिट हुई है उसमें भी सारी वैल्यूज़, थर्ड वाली में भी सारी वैल्यूज़ और फोर्थ वाली में भी. इस तरीके से आप अपनी एक वर्कशीट को स्प्लिट करके एक टाइम पर मल्टीपल लोकेशंस पर विजिट कर सकते हो. इस सेशन में वी विल कवर दिस मच. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button, share your views in the comment section, share my video with your friends so that उनके concepts भी clear हो जाए जैसे आपके हुए. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.